क्या कह रही हो? तेरह हो गए।
Good evening, everyone. Good evening, everyone. I hope everyone is doing well. I am Aishwarya Naik, convener of this workshop. Manilal Patel, sir, would you like to mute yourself? I'm muting you again and again, and you're unmuting yourself. There is a background noise that is coming. Yes, please. I hope everyone is doing well. I am Aishwarya Naik, convener of this workshop, Free Detox Diet 10 Days Challenge by Dr. Divya Naik. This challenge is very beneficial for people suffering from obesity, joint problem, diabetes, cholesterol, blood pressure, and skin problem. Let us all now welcome our keynote speaker and star of the show, Dr. Divya Naik. Ma'am, can you please switch on your video? Hello, ma'am. Dr. Divya is an Ayurvedic physician and professional yoga and meditation instructor. Dr. Naik is also diet and lifestyle consultant. Just a second, let me mute her. Dr. Naik is also diet and lifestyle consultant, and currently she runs her own meditation and wellness center named Adiyogi Ayurveda in Vijayanagar, Indore, Madhya Pradesh. She has also been associated with prominent institutes like Madhavbag and Care Retreat Center. Dr. Naik has also authored her own book, Detoxifying Mind, Body and Soul. She is also actively connected with hubs of meditation like Vipassana and JTTP. She also owns her YouTube channel by which she continuously awares her viewers regarding health, yoga, meditation, and diet. On 1 year anniversary of Adiyogi Ayurveda, Dr. Divya has launched this 10-day challenge, Free Detox Challenge. Ritu. Okay. We are very glad to have you, ma'am. Please start the session. Over to you, ma'am. Hello. Thank you so much. Okay. I request all the participants to please mute yourself. I'm continuously muting you all, and you are continuously unmuting yourself. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Please go ahead. Thank you so much, Aishwarya, for such a wonderful, wonderful introduction. So now we are going to start this wonderful 10 days challenge about detox. तो मैं सभी को सबसे पहले वेलकम करना चाहती हूँ इस वर्कशॉप में. My wonderful patients, amazing people, all are here, जिनसे मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ. कुछ लोग नए भी हैं यहाँ पर जो भी लोग अपनी किसी भी तरह की डिजीज जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम से इफेक्टेड है लाइफ में, and if they are tired of taking medicines from so long time, they are most welcome here. And in fact, if you are having no problem, अगर आपको कोई भी health issue नहीं है, you are completely healthy and fit, still this workshop is for you, because as we all know that for the longevity and beautiful running of anything, consider say for a bike या कार, हम अपनी गाड़ियों की भी सर्विसिंग करवाते हैं, और वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो अच्छे से चलें, उनकी जो longevity है वो बढ़ी रहे, वो अच्छे से काम करती रहें. So why don't we consider our body? हम अपनी बॉडी को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? So सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगी आप सभी से कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाने के लिए. If you are ready for this and ready to go with the full enthusiasm, please chat box पे yes लिखिए and we will proceed.
Aditi, yes, of course. You're such a beautiful soul. She is my great patient. She's following all the things that has been told. Excuse me. Excuse me, Mrs. Indra Nayawal, can you please mute yourself? Oh, sorry. Okay. So beautiful participants I have. Everyone is typing yes, and I'm sure सब लोग ready हैं अपने आप को detox करने के लिए, अपनी body को अपने सारे toxin से rid करने के लिए, अपनी problem से बाहर आने के लिए, और जिस तरीके से वो healthy and fit हैं, उसी तरीके से बने रहने के लिए. So second thing that I would like to request you all people, अपनी receptivity बढ़ाने के लिए क्या आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं so that हमें पता चले कि हम भी receptive mode पे हैं. You are ready to grasp everything that has been told to you. जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से grasp कर रहे हैं. टीचर को भी पता चलना चाहिए कि सब सारे स्टूडेंट्स अच्छे से सुन रहे हैं कि नहीं. एंड ऑल्सो आप अपने पास कॉपी नोटबुक पेन लेकर बैठ सकते हैं so that आप चीजों को नोट कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग विजिबल. तो फिर बोलने वाले को भी मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू सो मच. Okay, so from here onwards we are going to proceed with this thing. I'm going to share my screen. Okay, everyone. So we are going to start on this note. The topic of today, the first day challenge that we are having. आज का जो topic है वो है heal yourself, be your own doctor. So आपको अपना डॉक्टर अगर बनना है तो आपको खुद को हील करना सीखना पड़ेगा. अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने बारे में अपनी बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं तो हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस नोट, हील योरसेल्फ. ओके, सो इसीलिए हमने ग्रुप का नाम भी रखा है हील योरसेल्फ. अपने आप को आप हील करिए. सो बीइंग ऑन द स्पिरिचुअल नोट, आई डोंट नो कि कितने आप लोगों में से लोग जो हैं स्पिरिचुअल साइड से इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर थोड़े स्पिरिचुअल हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, जो भी चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में एज अ प्रॉब्लम, एज अ डिजीज, वो सब जो चीजें हैं उनका कहीं ना कहीं जो रूट कॉज होता है वो हमारी बॉडी के अलावा हमारे अलग स्तर पर भी होता है. हमारे मेंटल, हमारे फिर दूसरी जो एथरल बॉडी है, जैसे कि हमारी जो 7 टाइप्स की बॉडीज है, फिजिकल बॉडी, द एथरिक बॉडी, द एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, cosmic body and empty body. So these are the 7 types of body that we have. कई बार आप देखोगे as an example कि much worried about this thing or that thing. So वो जो लोग हैं अपने आप की कहीं ना कहीं किसी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं. कई बार लोगों को फीवर आ जाता है, कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, they will just say that this is just nothing. मुझे तो लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है. So everything will start from tension. अगर हम एक बच्चे को देखते हैं,
जो स्कूल नहीं जाना चाहता है वो कॉन्स्टेंटली बोलेगा कि मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, अचानक वो दिक्कत उसके अंदर दिखने लगती है। सो इस तरीके से बहुत ही एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम यहाँ पर आगे जाके कुछ सेशंस में ये भी बात करने वाले हैं कि मेंटली अपने आप को साउंड कैसे रखना है, अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखना है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है। तो इस पक्ष में है कि हाँ, हमें पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में और ज्यादा जगह देना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी के साथ हर चीज करनी चाहिए। और अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो पावर ऑफ पॉजिटिविटी, सो दे कैन आल्सो टाइप यस। थॉट्स, हमारी जो इमोशंस हैं, वो भी हमें प्रॉब्लम्स दे सकते हैं फिजिकल वे में। पर हम क्या कर सकते हैं अब इन सब चीजों के लिए? सो वी विल मूव ऑन टू व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। तो बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, मैं सबसे पहले आयुर्वेदा के बारे में बात करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू प्रमोट आयुर्वेदा, नो डाउट। आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत है वो है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, which means कि आयुर्वेदा का जो मेन उद्देश्य है, इट इज नॉट ओनली टू क्योर द प्रॉब्लमेटिक, द डिजीज पर्सन। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस चीज को ठीक करना आयुर्वेदा का काम नहीं है, बट स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, मतलब अगर आप स्वस्थ हैं फिर भी आप चाहते हो कि आप स्वस्थ बने रहो, आप हेल्दी, फाइन एंड फिट बने रहो, सो दिस इज ऑल अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ व्हिच डील्स विद लाइफस्टाइल्स। तो हम रोज के सेशंस में कुछ ना कुछ ऐसे डूज एंड डोंट समझेंगे which will be related to आयुर्वेदा also, जो हम अपनी लाइफस्टाइल में, डेली लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें जरूर करना चाहिए, एंड वी विल सी इट्स बेनिफिट्स। हम उसके बेनिफिट्स देख पाएंगे कि हम कैसे उससे अपने आप को हील कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा को जानना। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारे वेदास से आया है और हम को इसको पूरी तरीके से जानना चाहिए। लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेकर। 5000 साल पूर्व ये जो आयुर्वेदा के ग्रंथ लिखे गए थे, अभी हम इसको थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं। वी थिंक कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स जस्ट गो विद अ टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल, लेट्स जस्ट गो विद अ पेन किलर, लेट्स जस्ट गो विद एन एंटीबायोटिक। हम ये सब चीजों के चक्कर में पड़े रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ क्या हो गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज डाइट। ऑफ कोर्स, जैसे कि सेशन का नाम ही है डिटॉक्स डाइट, तो डाइट के बारे में हम मेजर बात करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आयुर्वेदा इज समथिंग जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पूछताछ करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप जो चीजें घर पे अप्लाई कर सकते हैं वो तो आप जान सकते हैं, पर आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाना वो थोड़ा सा सेकेंडरी आ जाएगा। पर ऐसी कौन सी चीज है जो हम घर पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज डाइट। तो डाइट के बारे में हम सोचेंगे, हमारा खुद का किचन जो है, हमारा औषधालय है, हमारा चिकित्सा केंद्र है और हमारी उसमें काफी सारी औषधियां हमें मिल जाती हैं, जस्ट दैट वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट इट। तो डाइट के बारे में हम बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं इसमें। थर्ड थिंग इज योगा। योगा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। योगा के ऊपर हम अलग से सेशंस रख सकते हैं आगे, इफ एनीवन, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें तो हम योगा के ऊपर भी सेशंस रखेंगे। पर अभी का जो मेजर है वो डाइट के बारे में है। पर इन केस आप लोग को लगता है कि आप ऑलरेडी योगा करते हो या फिर आप कहीं जाकर आगे योगा कर सकते हो, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग योगा। योगा इज द लाइफ सेवियर, स्पेशली विद द टाइम दैट वी आर इन, जो हम 2-3 साल से मेडिकली सफर कर रहे हैं, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं और जो अभी आगे 1-2 साल और भी हमारे लिए चैलेंज रहने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली अडॉप्ट लाइफस्टाइल थिंग्स दैट आर वेरी मच बेनिफिशियल टू अस, जैसे कि योगा, डाइट, आयुर्वेदा। Third and the foremost important thing for me, not for many people here, but yes, meditation. Meditation का मतलब है ध्यान।
मैं खुद मेडिटेशन पिछले 10 साल से कर रही हूँ. Meditation has changed my life to 360-degree angles. It has done wonders. It has made a huge change. Meditation brings a very huge change in every aspect of your life. You won't believe, but meditation alone can treat every problem. आपकी सब समस्या, आपकी हर स्वास्थ्य की समस्या, आपकी मानसिक, शारीरिक, हर तरह की समस्या से आपको बाहर मेडिटेशन ला सकती है. So it's very important. Ayurveda, diet, yoga, meditation, right? So जैसे कि मैंने बोला कि हमें आखिर डिटॉक्स डाइट ये चैलेंज करने की जरूरत क्यों है, हमें डिटॉक्स के बारे में जानने की जरूरत क्यों है. सो हम अपना घर साफ करते हैं, हम अपने आप को बाहर से सोप्स लगाते हैं कि नहीं, हैंड वॉश करते हैं, वी डू एवरीथिंग. हम अपना घर साफ रखना चाहते हैं, हम अपना रूम एकदम चकाचक चाहते हैं. वी वांट आवर बाइक्स एंड कार्स एंड स्कूटीज टू बी जस्ट परफेक्टली फिट, क्योंकि हम भैया उस पर रोज ट्रैवल करते हैं. वी वांट देम टू बी वर्किंग वेरी गुड फॉर अस. हम चाहते हैं कि उनकी लॉन्गेटिविटी बनी रहे, उनके ऊर्जे पुर्जे सब ठीक रहे, उनके पार्ट्स एकदम परफेक्टली फाइन काम करते रहें, और हमें बार बार कोई तरह की प्रॉब्लम्स उसमें फेस ना करनी पड़े. जब हम इतना सब कुछ सोचते हैं इतनी सारी चीजों के बारे में, देन व्हाई नॉट फॉर आवर बॉडीज, व्हाई नॉट फॉर आवरसेल्व्स. हम अभी कितने साल के हो गए यहाँ पर, कितने कितने साल के लोग हैं, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, हम सब एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं. बट हमने इतने सालों में कब अपनी बॉडी को एक ब्रेक दिया है? Our body, our digestive system has been working for us like anything, has been working for us like day and night. हम खाना खाते हैं, 3 घंटे में खाना पचता है, वो हमें एनर्जी देने वाला होता है और हम फिर से खाना खा लेते हैं. वो 3 घंटे में पचता है, हमें एनर्जी देने वाला होता है और हम फिर से खाना खा लेते हैं. तरीके से हम खाना खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर लोड डालते जा रहे हैं. हमको लगता है कि हमारा पेट है, एवरीथिंग इज, खाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हम ये नहीं समझते हैं कि आखिर जब अंदर खाना जा रहा है, उसकी पाचन क्रिया हो रही है, उसमें भी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसमें भी हमारी एनर्जी लग रही है. फॉर दैट रीजन जब हम खाना खाते हैं तो वी फील लेथार्जिक. लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल अब हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरा पेट बहुत ज्यादा फुल हो. ऐसा क्यों बोलते हैं? लोग बोलते हैं अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है. ऐसा क्यों बोलते हैं खाने के बाद? ऑफ कोर्स जब आप खाना खा रहे हो, आपके शरीर में जो प्रोसेस हो रही है, दैट इज पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव प्रोसेस. इट आल्सो हैज इट्स ओन कॉन्सिक्यूटिव्स, मतलब उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसमें भी बॉडी में कुछ ना कुछ असर दिखता है. हमारी एक्टिवनेस और हमारी लेथार्जी, हमारी थकान का सीधा संबंध हमारे जो खाना खाने की प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है. हम खाना खाते हैं बिल्कुल सुई की नोक के ऊपर, ओ 9 बज गया ब्रेकफास्ट टाइम, ओ 1 बज गया लंच टाइम, 5 बज गया स्नैक्स तो बनता है, शाम को 8 बज गया डिनर का टाइम हो गया. बिकॉज ये सब चीजें चली आ रही हैं हमारी लाइफ में. हम नहीं जानते हमारे परदादा, हमारे परनाना, हमारे ऊपर जो लोग थे वो किस तरीके से उनकी प्रक्रिया, दिनचर्या, उनका जो काम करने का प्रोसेस था, उनका कितना हेक्टिक होता था, वो कितना काम करते थे. हम सोचते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अरे ये तो ऐसा ही होता आ रहा है, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इट इज, इट हैज टू बी. अब तो भूख लग गई ना, सुबह उठ गए हमको भूख लग गई है, खाना तो खाना पड़ेगा. अब दिन हो गया है तो खाना तो खाना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट कीप्स हैपनिंग. ये होता रहता है. तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम बस अपने शरीर में खाना डालते रहते हैं, बिना ये सोचे कि पहले का खाना पचा है कि नहीं, बिना ये सोचे कि खाना खाने के बाद हमें कितना इंपॉर्टेंट काम करना है, क्या हम वो कर पाएंगे या नहीं. हमारी बॉडी को खाना पचाने में भी एनर्जी लगेगी, हम अपनी बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड तो नहीं डाल रहे हैं. ये सब चीजें हम नहीं सोचते हैं. तो डिटॉक्स डाइट सबके लिए क्यों? इसीलिए क्योंकि हम बाकी सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो इस चीज का क्यों नहीं. अब मैं जानना चाहूंगी
कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, चैट्स पर ना लिखें, पर आप सोचें, समझें और खुद इस चीज को एनालाइज करें कि हमारा इतने सालों से रूटीन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छा बताइए हमारे लिए क्या है, हम सुबह उठ के हमें क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दिन कैसे शुरू होता है? चाय से? हाउ डज अ डे स्टार्ट? हमारा दिन कैसे शुरू होता है? ऑफ कोर्स चेतना जी, चाय से होता है, बिल्कुल। चाय तो आपको छोड़नी ही है। ओके अदिति, वाटर से होता है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ रही है। योगा एंड मेडिटेशन, ग्रेट ग्रेट। भागीरथ जी, बहुत अच्छी चीजें आप कर रहे हो, किससे सीखी है आपने? तो आई एम वेरी इट्स वेरी गुड टू नो दैट पीपल आर अवेयर अबाउट इट, लोग कर रहे हैं कुछ चीजें। और बहुत सारा मेजर जो टाइम हमको नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो मोस्टली हमको चाय से अपने दिन की शुरुआत करनी होती है, एंड वी डोंट इवन नो चाय किस तरीके से हमारे लाइफ में ब्लंडर क्रिएट करती है। उसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट सेशन रखा है, बिकॉज मेरी जो सिस्टर है शी इज अ चाय लवर। मेरे जो घर पे सब लोगों का जो दिन है चाय से शुरू होता है। एंड ऑफ कोर्स मैं भी इतने सालों से चाय पी रही थी, बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, बिकॉज वही हमारे सराउंडिंग्स में चल रहा है, वही हमारे आसपास चल रहा है, वही हम चीजें देखते हैं। तो हमको लगता है हम कर लेंगे तो क्या बुराई है, पर हम ये नहीं जानते कि आज से जब 9-10 साल बाद यही रूटीन लोग अपना रहे होंगे, इसके प्रति लोग सजग हो रहे होंगे, तो हमें लगेगा कि ये चीज तो हमें पहले पता थी, हमने तब अप्लाई क्यों नहीं की। या फिर जब हम किसी आईसीयू के बेड पे होंगे, या फिर हम किसी बड़े पेन से जब पीड़ित होंगे, लाइफ के किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तब हमें पता चलेगा कि शायद हमने तब इतना सा कंट्रोल कर लिया होता, सो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। तो ऑफ कोर्स जो हमारा रूटीन शुरू होता है जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है चीजों को। हम अपने जो ओकेजन्स मनाते हैं, हमारा जो स्टाइल है त्योहारों को मनाने का, इंडिया ट्रेडिशंस, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं दे आर वेरी कलरफुल। Our culture is very, beautiful, full of so many occasions, colors. कुछ ना कुछ चलता रहता है, but we should know where to stop. This is high time, guys. अभी जो चीजें हो रही हैं और होने वाली हैं, this is high time कि हम उस चीज के बारे में अवेयर हों और हम अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर करें कि आखिर हमें क्या करना है, कहाँ स्टॉप लगाना है। और इंस्टेंस अगर हम श्योर हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज डू गुड and we are able to digest everything that we are having, then it's fine. Once in a blue moon, you're having something which you know is not good for you, but you know that ठीक है हम ये चीज कर रहे हैं, तो it is fine. बट जब हमें पता है कि ओ अब तो हम घर आए हैं छुट्टी मनाने, हमको तो रेस्ट करना है, पर हमें खाना पीने में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, then that is a problematic thing, friends. Here we need to keep a stop on it. अब मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे कि हम सब दिन भर में कितनी मील्स लेते हैं। प्लीज चैट पे लिखिए कि आप दिन भर में कितनी मील्स लेते हैं, हमको कितनी बार कुछ खाना होता है। हाउ मेनी मील्स? ओके, प्रमोद पाटिल जी लिख रहे हैं 2 और 3, भागीरथ जी लिख रहे हैं 3, चेतना जी लिख रही है 4, अदिति 3, ओके, अपूर्वा 3, ओके, जय 2 meals and 1 breakfast, ओके, ग्रेट। अब मील्स का क्या फंडा है वो भी हम जानेंगे। मील्स आप किस चीज को कह रहे हैं हम वो भी समझेंगे, मील्स में हम क्या ले सकते हैं हम वो भी समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हाउ मेनी मील्स वी टेक। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि हम इंडियंस, हमें पता है कि ओ
हमारा नाश्ता मतलब पराठा सब्जी तो होना ही चाहिए, पोहा तो होना ही चाहिए, लंच मतलब रोटी सब्जी दाल चावल मस्ट है ना, उसके बिना क्या खाना। रात को डिनर रोटी सब्जी दाल चावल इज मस्ट, उसके बिना खाने का क्या मतलब है। तो ये सब चीजें हम जानते हैं कि हम इंडियंस हम प्रॉपर खाना खाते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर हम इतनी सारी चीजें जा रही है, कैसे वो पचेंगी, कॉम्प्लिकेट होंगी, क्या हम उनको पचाने के लिए उतना काम कर रहे हैं, या फिर हम सुई की नोक पे अंधाधुन जैसे हमेशा से सुनते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, वैसे ही अपनी मील्स को खाते जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि क्या हमारी बॉडी को उन मील्स की जरूरत है या नहीं है। हम ये नहीं जानते। हमको पता है कि हमारे घर में आज दाल बनी है, एक कटोरी दाल बच गई, सब लोगों ने खा लिया, फ्रिज में रखना भूल गए, अब वो बाहर रखी रह गई। दूसरे दिन व्हेन वी विल सी दैट दाल, व्हाट विल हैपन ऑफ दैट दाल? वो जो दाल बाहर रखी उसका क्या होगा बताइए आप लोग। जो दाल छूट गई, दूसरे दिन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है। अगर कोई खाना जो हम बना रहे हैं और नहीं खा पाए हैं और वो छूटता है तो ऑफ कोर्स वो खराब होगा, उसमें से बास आएगी, उसमें से खट्टी सी स्मेल आ जाती है, उसके ऊपर हमें कुछ दिखने लगता है। सो सिमिलरली जस्ट इमेजिन हम हमारी बॉडी के अंदर एक बोल है सूप का, वी आर पुटिंग द फूड इन इट, वी आर पुटिंग द फूड इन इट, तो अंदर हमारी बॉडी के अंदर भी यही हाल होने वाला है, नथिंग डिफरेंट। फिर जब हमें होता है गैसेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गड़बड़, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अरे मैंने तो ज्यादा खाया नहीं था, ये क्यों हुआ? वी डोंट नो दैट, राइट? तो मील्स को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए हमें ये सब चीजों को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिवाली, न्यू ईयर, अभी अभी न्यू ईयर निकला है, मैं पता है सबने बहुत अच्छे से न्यू ईयर मनाया है, इसलिए पीपल आर लाइक मोर डिटॉक्स डाइट। अभी हमने कुछ फालतू खा लिया है, अब हमें बॉडी से निकालना है, लेट्स गो फॉर दिस डिटॉक्स थिंग, राइट? तो हमें डिटॉक्स डाइट को जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आज लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्योंकि साइंस और रिसर्च बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं हर चीज के, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, क्या बीमारियां कम हो रही हैं? क्या लोगों की प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं? क्या किसी भी तरह की हेल्थ हैजार्ड कम हो रही है? इनफैक्ट थिंग्स आर बीन प्रोग्रेसिंग, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही हैं। ये सारी चीजें, जो इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, आज हमें मेड्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, हमें ये सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है। पहले के जमाने में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, तो आज हमारी प्रॉब्लम्स कम होनी चाहिए या ज्यादा? साइंस ने इतना ज्यादा रिसर्चेस करके इतना प्रोग्रेस कर लिया है, बट स्टिल नथिंग इज इन प्रोग्रेस बिकॉज मेडिकली वी आर स्टैंडिंग देयर, मेडिकल प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ गया है, पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ गया है, डॉक्टर्स का नंबर बढ़ गया है, तो पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ गया है। तो पेशेंट्स का नंबर कम होना चाहिए ना। अगर हॉस्पिटल्स के नंबर बढ़े हैं तो अब पेशेंट्स तो कम होने चाहिए, पेशेंट्स के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू नो अबाउट डिटॉक्स डाइट। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है कि अगर हम डिटॉक्स डाइट को अच्छे से फॉलो करें, अगर हम डाइट को अच्छे से समझें, तो मेडिटेशन के साथ डिजीज को हम बाय बाय कर सकते हैं, अपनी सभी टैबलेट्स को पूरी तरीके से छुट्टी कर सकते हैं उनकी, हमें टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको आज से ही इन सब चीजों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है। दिस इज हाई टाइम गाइस। तो जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ ना सही पर अपनी बॉडी के अंदर की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो जरूर करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हर चीज का रूट कारण है, हम डिटॉक्स डाइट के बारे में जान रहे हैं क्योंकि रिसर्चेस बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, दवाइयां भी बढ़ रही हैं, पर प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही। सेकेंड चीज, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टॉक्सिन्स का मतलब होता है आम। तो ये जो आम है, बॉडी में ऐसा खाना जो हम डाल रहे हैं, खाना जो अपचित रह जाता है, सपोज वी आर टेकिंग शुगर, देयर आर मेनी थिंग्स जो हमारे शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाता है। हम जब डेफिकेशन करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर ही नहीं निकलता है।
ना ही वो हमारी बॉडी में हमें ताकत देने का काम कर रहा है, वो सिर्फ हमारे शरीर में पड़ा हुआ है एज अ टॉक्सिन, वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए पड़ा हुआ है। और वही हमारी लेयर्स में बन के हमारी टमी की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो बना देता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को इंक्रीज कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है। के साथ वो जो टॉक्सिन्स हैं वही अगर हमारे जॉइंट्स में चले जाए तो हमें जॉइंट्स पेन करवाते हैं, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स में रेडनेस आ जाती है। वो टॉक्सिन अगर हमारे पेट में बचा रह जाता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कब्जियत, हमें गैसेस होती हैं, ब्लोटिंग होती है। यही जब टॉक्सिन इकट्ठा होकर हमारी किडनी में चला जाता है तो किडनी स्टोन को फॉर्म करता है। यही टॉक्सिन इकट्ठा होकर हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है तो देखिए क्या क्रिएट करता है, फिजिकल एंड एनर्जेटिक चैनल्स आर क्लॉग्स। यस, तो ये जो अंदर आपको समझ में आता है ना, लोग डॉक्टर्स बोलते हैं ब्लॉकेज हो गया या फिर हार्ट अटैक आ गया, ये तो शुरुआत आम से ही होती है, टॉक्सिन से ही होती है। जो चीजों की हमारे शरीर में जरूरत नहीं है उसको शरीर में नहीं होना चाहिए, वो शरीर से निकल जाना चाहिए। और उसको ही निकालने के लिए क्या कुछ करना है वो जानेंगे हम इन 10 दिनों में। पर मैं फर्स्ट डे आपके ऊपर हर चीज बम्बार्ड नहीं करने वाली हूँ। एवरी डे we are going to take some or the other practices that are going to help us. हेडेक, अगर आपको लगता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, आज मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा, आज मुझे थोड़ी सी थकान सी लग रही है, आज मुझे ना कुछ बहुत बाहर का खाने का क्रेविंग हो रहा है, दीज ऑल आर सिम्टम्स दैट आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं। जैसा पैसा पैसे को खींचता है वैसा कूड़ा भी कूड़े को खींचता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स रह जाते हैं तो ही वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हम अपने लेवल पे कैसे पता कर सकते हैं कि हमें टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में? आप आईने में देखिए, अपनी जीभ को बाहर निकालिए और देखिए, आपको उसके ऊपर व्हाइट कोटिंग दिखेगी, ब्लैक या ग्रीन कोटिंग दिखेगी। इट मीन्स आपके पेट का जो खाना है वो ठीक से पचा नहीं है। आपको हेडेक रहेगा बीच बीच में, आपको बहुत लेथार्जी रहेगी, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, कभी आपका खाना खाने का मन नहीं होगा, कभी आपको बाहर का कुछ खाने का क्रेव होगा। दीज ऑल आर द सिम्टम्स दैट शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ गड़बड़ है मतलब अब हम डॉक्टर बन चुके हैं ना, हमें पता है क्या गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है मतलब क्या गड़बड़ है बताइए। जो अभी हमने समझा, कुछ गड़बड़ है मतलब टॉक्सिन्स। वेरी गुड अदिति, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं। मैं बीच बीच में चेक कर रही हूँ सो दैट मुझे पता चले कि आप अच्छे से सुन रहे हो कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो आम जो है टॉक्सिन्स हैं वो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा तो वो मोस्टली डिजीज का जड़ है। तो वैसे टॉक्सिन्स क्या सिर्फ फिजिकल लेवल पे हो सकते हैं? क्या सिर्फ हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हो सकते हैं? नहीं, वो हमारे मानसिक तौर पे भी हो सकते हैं ना। तब हमको लगता है कि ओ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा क्या है? किचन तैयार हो गया। अब बस कह रहे थे मैंने प्रॉमिस किया था ना, थैंक यू मिस्टर गल्होत्रा। जब हमें लगता है कि ओ मुझे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है, उसने मुझसे अच्छे कपड़े पहने हैं, ओ वो मुझसे ज्यादा कमाता है, ये भी एक तरह का टॉक्सिन है, मानसिक प्रॉब्लम है, यू नो। इससे उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? किसको प्रॉब्लम हो रही है? हमें ही प्रॉब्लम हो रही है। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम जिसको हमको ही सॉल्व करना है। हमें बुरा लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रही है? वी आर हैविंग द प्रॉब्लम। तो सिर्फ शारीरिक आम नहीं होता है, मानसिक भी होता है। तो शारीरिक जो टॉक्सिन्स हैं उनको क्यों ना हम बाहर निकाल दें और मानसिक टॉक्सिन्स को हम अंदर ही सहनशीलता के साथ हैंडल करने की कोशिश करें, तो हम अपनी सभी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो हम समझेंगे, टॉक्सिन्स के बारे में हमने समझा। टॉक्सिन्स हर चीज में जो कारण है ये हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे अगर हमको पढ़ना है तो हमें जानना होगा कि टॉक्सिन्स के अलावा और क्या। देखिए, पेट दर्द वाली लड़की उसको पेट दर्द हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे टॉक्सिन्स पेट में इकट्ठे और पेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। अब हम ये बता देते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है,
उसको पता है शरीर को कि टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालना है, पर हम ही अपनी बॉडी को समझ नहीं पाते। जब हमें कफ हो रहा होता है, मतलब जब कफ निकलता है, वो हमारी बॉडी का तरीका है हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का। जब हमें कोल्ड होता है, हमें वॉमिट होता है, मतलब उल्टी होती है, ये देखो टॉक्सिन निकला, तो ये तरीका है हमारी बॉडी का टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। हमें डायरिया होता है, हमें लगता है ओ दस्त हो गया, 2-3 बार 3-4 बार पेट साफ हो गया। हम ये नहीं देखते कि हमने एक दिन पहले क्या खाया, दाल वाफला, दाल बाटी, कुछ ना कुछ समोसा गड़बड़ खाया होता है हमने, ठीक है। तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि क्या गड़बड़ है, उसको कैसे निकालना है, तो उसको उसका काम करते रहने देना चाहिए। एकदम से वो सिग्नल देती है तो तुरंत टैबलेट नहीं खा लेना चाहिए, ठीक है। इवन जब हमें फीवर होता है, वो हमारी बॉडी का तरीका है हमें बताने के लिए कि ओके ओके गड़बड़ है, बॉडी अंदर अपना काम कर रही है, फाइट कर रही है। उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, दवाई खा लो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। दिस इज आवर वे, बट ठीक है। ये तो सब इमरजेंसी चीजों की बात हुई, हम तो यहाँ पर लाइफस्टाइल चीजों की बात कर रहे हैं जो आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम दे रही हैं, आप परेशान हो रहे हो, आपको उससे छुटकारा पाना है, आपको अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना है, आपको एक अच्छा स्वस्थ शरीर पाना है, और ये सब जो वायरस वगैरह का चक्कर है, इससे बच के स्वस्थ आगे निकल जाना है। आपको पता है मार्केट में अभी इतनी सारी मेडिसिन हैं, 80% जो उसमें से मेडिसिन है वो गैस रेगुलेटर्स ही हैं। आप लोगों में से कितने लोग पेंटॉप लेते हैं, कितने लोग आप लोगों में से, हाँ चलो कुछ नहीं इनो ले लेते हैं, कुछ कुछ तो ले लेते हैं अभी एसिडिटी के लिए। सो बहुत सारे लोग एसिडिटी के लिए कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, पेट साफ के लिए कोई ना कोई चूर्ण लेते रहते हैं, और लॉन्ग टाइम तक लेते रहते हैं। उनको लगता है कि दिस इज नॉर्मल, पेट साफ होना इम्पोर्टेंट है, उसके बिना पूरा दिन कैसे जाएगा। वो लोग रूट कॉज पर एनालिसिस ही नहीं करते, वो लोग समझना ही नहीं चाहते कि हम कैसे इसकी जड़ पर जाके इसको प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो टॉक्सिन्स जमा होकर कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करते हैं। हमारे घुटनों में कितने लोगों को संधिवात होता है, मतलब पैरों में गाउट होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाती है जॉइंट्स में। हमें लगता है ओ बुढ़ापे की वजह से, नहीं, वो बुढ़ापे की वजह से नहीं हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल जो चलती आ रही है, हमारा खान पान जो इतने समय से चलता आ रहा है, वो इकट्ठा होके यूरिक एसिड के तौर पर हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम देता है। दैट इज द रीजन जो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है कभी कोई पहलवान, जब अगर उसको बहुत इंपॉर्टेंट अपनी फाइट करने जाना है, या फिर कोई बैडमिंटन प्लेयर, या फिर कोई ऐसा कि हमें दौड़ दौड़ लगानी है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम बहुत ज्यादा खाना खा के जाएंगे या बिना खाना खाए जाएंगे? क्या करेंगे हम बताइए? सो बेसिकली क्या होता है, हाँ थोड़ा सा खाकर जाएंगे। हमको अगर हमें दौड़ना है, अगर हमें कुछ काम करना है, तो हमें ये लगता है कि हमें खाने की जरूरत है। दैट इज अ मिथ माय डियर फ्रेंड्स। सुबह का खाना इज अ मिथ। हमें लगता है कि हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, पर हम ये नहीं समझते हैं कि हमको उस चीज की आदत हो चुकी है। वी आर जस्ट ईटिंग बिकॉज फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। हम रात को 8 घंटे सोए हैं दोस्तों, हम 8 घंटे सो के उठे हैं, हमारे पास बहुत ही जीवनीय शक्ति है, हमारे पास कॉस्मिक एनर्जी है, हम रात को सोकर उठे हैं, हमारे पास ताकत है अपना काम करने की। हम चाहे तो उस टाइम अपना खाना लाइट रख सकते हैं, हमें सुबह सुबह पेट भरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन खत्म होता है, हमारे काम खत्म होते हैं, हम अपने खाने का पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं इस वर्कशॉप में बात करने वाली हूँ। और वो आप जब अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में इन 10 दिनों में, तो आपको चेंजेस खुद समझ में आएंगे, आपके एनर्जी लेवल पे, आपके बॉडी लाइटनेस पे। आप लोग खुद वो चीज मेरे साथ फिर शेयर करोगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी आई वांट टू टेल यू, कि कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझ में नहीं आती है और हम उसके साथ चलते रहते हैं। तो कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करना है वो हैं कुछ प्रैक्टिसेस जिनके बारे में अभी तक हमने बात की। तो आज पहला दिन है, तो हम छोटी सी प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करेंगे।
ओवर ईटिंग, खाया फिर 2 घंटे बाद फिर से खाया, फिर 2 घंटे बाद फिर से खाया। अरे भाई, खाने को पचने का तो टाइम दे दो। पहले का खाना पच तो जाने दो। आपको एनर्जी की जरूरत हो, जब बॉडी बोले भूख लग रही है, तब जाने दो बॉडी में। अब हमको ओवर ईटिंग अवॉइड करना है। दिस इज द हाई टाइम जब हम ये सोचना शुरू करें कि हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है हमें उतना ही खाना उसको देना है। ठीक है। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है। जो प्रोसेस फूड है, जो जंक फूड है, जानवर भी उसको नहीं खा पाते। जानवर भी उसको पचा नहीं पाते। वो भी आपके हाथ की रोटी बना हुआ खाना ज्यादा आप प्रेफर करेंगे अगर आप चिप्स डालोगे तो उसकी अपेक्षा। तो जंक फूड, फास्ट फूड हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसको पचने में जो टाइम लगता है, उसको पचने में जो एनर्जी लगती है, और बहुत सारा जो पोर्शन हमारे बॉडी में बच जाता है एज टॉक्सिन्स, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब ऐसा कोई भी इंडियन हाउस होल्ड होगा क्या जहां पर एक भी दिन शुगर मतलब शक्कर यूज ना होती हो? कोई घर है ऐसा? खीर हमें पसंद है, हलवा हमें पसंद है, चाय हमें 3-3, 4-4, 5-5 बार पसंद है। सब चीजों में शक्कर डलती है। शक्कर क्या है? कितने की आती है शक्कर? जो चीज कचरा होता है वो सबसे सस्ता आता है। आप मॉल्स में चले जाओ, वो आपसे बोलेंगे 1000 की शॉपिंग कर लो, शक्कर फ्री, 1 किलो शक्कर फ्री। दिस इज व्हाट हैपेंस। शक्कर का जो पूरा प्रोसेस है, जो भी सारी अच्छे गुण है, जो भी सारी अच्छी चीजें हैं, वो सब निकल जाती हैं। हमको पता है हमारे पास शुगर केन, गुड़, ये सब चीजें हम चाहे तो वो यूज कर सकते हैं, बट वी डोंट यूज इट। हमें तो शक्कर खाना है। दुनिया पूरी शक्कर खा रही है तो हम भी शक्कर खाएंगे। सब लोग आगे जा रहे हैं तो हम भी साथ में चलेंगे। हम ये नहीं समझते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। वही हमारे शरीर में जाके पच जाती है, चिपक जाती है, रुक जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ब्रेकफास्ट, मैं बता दूं, ब्रेकफास्ट मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मील रहा है। ब्रेकफास्ट को बचपन से मैंने बहुत ही दिल से, मतलब उसके बाद आप कुछ दो ना दो, ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट। बट बोलते ना, देर आए पर दुरुस्त आए। जब हमें जो चीज पता चलती है, जो फैक्ट्स पता चलते हैं रिसर्चेस के बेस पर, कई लोग उससे फायदा ले चुके होते हैं, कई लोग अपनी दवाइयां बंद कर चुके होते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके होते हैं। तो हमको एज अ डिटॉक्स डाइट उसको फॉलो करने में क्या हर्ज है? हम वो करके देखें और फिर उस चीज को माने, है ना? तो मैंने उस चीज को करके देखा और बहुत सारे लोगों से करवाया, और जब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तब मैं आज एज अ रिसर्च आपके सामने इस चीज को ला रही हूँ। जो ब्रेकफास्ट है वो हमें स्किप करना है। ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो उसकी जगह क्या लेंगे? ठीक है, वो हम बताएंगे। ब्रेकफास्ट अगर स्किप करना है तो उसकी जगह क्या लेना है? हम 8 घंटे सो के उठे, हमारे पास इनफ एनर्जी है, हम बहुत एक्टिव मोड पे हैं सुबह, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, अपने कामों को करिए। बिल्कुल भी किसी तरह के लालच में मत आइए, क्योंकि हम इतने सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ खाना है, खाना है, खाना है। बट जस्ट ट्राई टू डू इट। आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया है, आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना बढ़ चुका है, आपका काम करने के तरीके में कितना चेंज आ चुका है। आप करके देखेंगे और फिर इसको समझेंगे। कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी पीना छोड़ना है। ये 10 दिन करके देखिए, छोड़ दीजिए। आई नो ठंड का टाइम है, लोग तो 3-3, 4-4 बार पीते हैं, बट मैं उसका भी ऑल्टरनेटिव आपको दूंगी कि अगर चाय और कॉफी नहीं पीना है तो ऐसा क्या है जो टेस्टी सा और हेल्दी सा और बहुत ही असरदार सा हम पी सकते हैं, जिससे हमें गर्माहट भी मिले, अच्छा भी लगे, और हमें किसी तरह की क्रेविंग भी ना हो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब लोग बोलेंगे ये तो अब हद हो गई, मिल्क, दूध क्यों नहीं पिए हैं भाई? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, बहुत सारी रिसर्चेस आ रही हैं, बहुत सारी अभी शोध हुए हैं जिसके ऊपर पता चला है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो अभी जिस तरीके का जो दूध होना चाहिए उस तरीके का नहीं आ रहा है मार्केट्स में। अभी फॉरेन में प्रॉपर क्राइटेरिया होता है हर चीज का, उस पर प्रॉपर चेक होता है, उसमें कितने प्लस सेल्स होने चाहिए, कितना होना चाहिए, सब कुछ। पर इंडिया में वो सारी चीजें नहीं है। इंडिया में बस मार्केटिंग चल रही है, प्रमोशन चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। दे जस्ट वांट टू सेल एज एन सो, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो चीजें सेल करना चाहते हैं, बिना उनकी क्वालिटी चेक करे। उसमें जो श्लेष्मा है, जो कफ की मात्रा है, जो
पस सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत सारी चीजों में वो बहुत असरदार प्रॉब्लम्स करते हुए नजर आए हैं। मैंने अपने डायबिटीज पेशेंट्स के सिर्फ दूध और दूध के प्रोडक्ट्स बंद करवा के उनकी इंसुलिन तक बंद करवाई है, उनकी टैबलेट्स तक बंद करवाई है। इसके ऊपर एक लंबा लेक्चर लगेगा, एक लंबा सेशन लगेगा, बट अगर आपको विश्वास है और अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करके देखना चाहते हो, 10 दिन जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो आप छोड़ के देखिए और जो चीजें मैं बोल रही हूँ उसको आप ट्राई करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ओवर ईटिंग इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। जंक, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, व्हाइट शुगर, ब्रेकफास्ट, tea, coffee, milk and milk products. Just leave them and see the changes. Weight loss करना है, diabetes, sugar कम करना है, there. Blood pressure control, there. Cholesterol, everything would be there under control. आप चाहो तो आज के दिन अपने पैरामीटर्स ले लो, अपने इंचेस ले लो, हर चीज ले लो and just follow the things that I'm telling you and you will see the great changes in you. अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी छोड़ने को तो बता दिया क्या क्या करना है, अभी क्या करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तो अब हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? तो ग्रीन जूसेस, हम सभी के यहाँ ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पालक, कड़ी पत्ता, धनिया, इसके अलावा जो चीजें होती हैं वो है गाजर, ऑरेंजेस, ठीक है। ये सब चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ग्रीन जूसेस बना सकते हैं। आंवला आ रहा है सीजन में, वो ले लीजिए। टमाटर, टमाटर की चटनी किसको पसंद नहीं है? इनफैक्ट वो गैस के ऊपर जाके थोड़ा एसिडिक हो जाता है, अगर हम एज अ चटनी उसको बनाए, उसका प्रॉपर जूस में करें, खट्टा बन जाएगा और पौष्टिक भी बन जाएगा। सो सुबह ग्रीन जूसेस लेना शुरू करना है। हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे डालना है। रात के डिनर के बाद 14 घंटे बॉडी में कुछ भी खाने के लिए नहीं जाने चाहिए। सुबह अगर हमें लगता है कि हमें कुछ जरूरत है, जस्ट हैव ग्रीन जूसेस। किसी भी तरह का लिक्विड पेय या पदार्थ लेना है जिसमें मोस्टली ग्रीन जूसेस होने चाहिए, ये आप सुबह स्टार्ट करिए लेना। एंड जस्ट सी कि कैसे खटाखट बॉडी के अंदर एक आपका आक्रोश आ जाएगा, एक क्रांति स्टार्ट हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस अपने आप चालू हो जाएगा। स्टार्ट टेकिंग ग्रीन जूसेस प्रॉपरली। उसमें आप गाजर मिला सकते हो, उसमें आप टमाटर मिला सकते हो, उसमें आप पालक मिला सकते हो, चटनी जैसा बन जाएगा। थोड़ा पानी डाल दो, छान लो, हल्का सा नमक डाल के लेकर देखो, यू विल लव दैट। पौष्टिक भी है, तंदुरुस्ती भी देता है और बहुत ही हेल्पफुल है हर तरह की प्रॉब्लम्स में, जॉइंट प्रॉब्लम में, स्किन प्रॉब्लम में, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये लेकर देखिए एंड यू विल सी द चेंज। इसके अलावा सुबह उठकर जो हम नींबू का पानी लेते हैं वो तो हमें लेना ही है। नींबू का पानी नहीं भी तो गर्म पानी, नॉर्मल पानी विल आल्सो वर्क। अब हम चाय नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह मैं एक अच्छी सी रेसिपी बताती हूँ, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसको कहते हैं संजीवनी पेय। इसमें आप पानी लीजिए, उसमें आप अदरक इसके डालिए, एक चुटकी दालचीनी, चाहे तो डाल सकते हैं, वेरी गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स, वेरी गुड फॉर लोगों को जिनको थोड़ा पतला होना है उनके लिए। इसमें आप क्या कहते हैं, थोड़ी सी लौंग डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च पीस के डाल लीजिए क्योंकि अभी ठंड चल रही है। उसको अच्छे से बॉईल करिए। आपको मीठा करना है तो उसके लिए आप गुड़ डाल सकते हो या हनी डाल सकते हो, मतलब शहद डाल सकते हो। शक्कर अवॉइड करना है दोस्तों, 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके ऊपर आप 2-3 बूंद अगर नींबू निचोड़ोगे, चाय कुछ नहीं लगेगी उसके सामने, क्योंकि चाय की पत्तियां तो दोस्तों, चाय और टोबैको की पत्तियां तो जानवर भी नहीं खाते हैं। हम मनुष्यों के जीवन में पता नहीं ये कैसे इतना घर कर गई, पर चाय छोड़ के ग्रीन जूसेस हम शुरू करने वाले हैं ब्रेकफास्ट स्किप करके। के बाद बजेगा 12-1, आपके पेट की घंटी बोलेगी अब तो खाने दो कुछ। तो हमारे शरीर में हमें ऐसी चीजें डालनी है, जो चीजें शरीर में चिपकेंगी नहीं, फैट क्रिएट नहीं करेंगी, पर इजीली शरीर से निकल जाएंगी। और क्योंकि हमें पतले होना भी तो है, हमें अपनी प्रॉब्लम से निजात पाना भी तो है, तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो हम भूख लगेगी तो 12 से 1 बजे के बीच में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो खा सकते हैं। केला, बनाना, गुआवा, जो भी फ्रूट खाना है, ऑरेंजेस, मौसम्बी, व्हाटएवर। के अलावा भी हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार दैट इज नॉट इनफ, तो हम ले सकते हैं स्प्राउट्स, मूंग की दाल, जो खड़ी मूंग की दाल है उसको भिगाकर आप स्प्राउट बना सकते हो और वो ले सकते हो।
फिर उसके बाद अब आपने आधा दिन निकाल दिया, अब अपने एनर्जी लेवल्स को देख के बहुत ज्यादा बहुत शक्ति होने वाले हैं। 1-2 दिन आपको भूख लगेगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी शुरुआत के 2 दिन, पर तीसरे दिन से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। यू विल बी लाइक कि अब मुझे यही लाइफस्टाइल पे रहना है। अब हमारे मन के लिए, हमारी मन की क्रेविंग के लिए, हम तो ह्यूमंस है ना, इंसान है, मन तो होता है ना कुछ खाने का, तो हम वो खा सकते हैं शाम के 4 बजे, 4 से 5 बजे। अब हमारा दिन जब खत्म होने को है, हमारे इंपॉर्टेंट काम हो चुके हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स को हमने यूज किया है कुछ अच्छे कामों के लिए, अब हम अपने पेट के लिए भी कुछ खाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे जो मन है, व्हाटएवर, पोहा, उपमा, जो भी आपका मन है, जो भी आपको खाना है, चीला, पराठा, इनफैक्ट अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो नाश्ते के तौर पे लेना है। ये नहीं कि खाने की तरह ओ माय गॉड बहुत तेज भूख लग रही है भर के खा लिया, नहीं। एज अ नाश्ता यू हैव टू ईट इट, एज अ ब्रेकफास्ट यू हैव टू ईट इट। शाम के 4 से 5 बजे आपको उस तरीके से लेना है। उसके बाद जो आपका डिनर है वो आप 8 बजे से पहले कर सकते हो। डिनर में हम कोशिश करेंगे कि कोई भी एक ग्रेन रखना है, मतलब रोटी या फिर दाल या फिर चावल, इन तीनों में से कोई एक। उसके साथ कोई भी सीजनल वेज। अब आप सोचो, अब हमें तो प्रॉपर डाइट चाहिए ना, हमको तो चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, खीर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब्जी, दाल भी चाहिए। ट्राई टू कंफ्यूज आवर पेट वंस एंड फॉर ऑल, ये सब चीजें चलती हैं। नॉर्मली अगर हमें करना है, हम डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं, गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो डिनर में एनी वन ग्रेन एंड कोई भी सीजनल वेज, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, लौकी की सब्जी, जो भी सब्जी आपको खाना है आप खाओ, है ना। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हुआ? मैं मतलब जानना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप अग्री कर रहे हो तो चैट में यस लिखिए, अगर आप अग्री नहीं कर रहे हो तो नो लिखिए। हाँ, चैट में भी लिख दीजिए। गुड। वेरी गुड। सिमरन बलवानी, हार्मोन्स। अगर हार्मोनल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अशोकारिष्ट ले सकते हो। अशोकारिष्ट आपको किसी भी मेडिकल आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा। 20 ml मॉर्निंग इवनिंग, वो आप ले सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको नॉर्मली लगता है कि इरेगुलर मेंसेस, मेंसेस में कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा सा पेन, तो आप अशोकारिष्ट लीजिए और वो 20 ml मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं। चेतना जी, अभी हमको फॉलो करके जैसे हम लंच लेकर जाते हैं तो लंच में हम लेकर जाते हैं रोटी सब्जी वगैरह, लेकिन अगर हम चाहें तो स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स भी लेके जा सकते हैं। एंड अगर आपको डिटॉक्स करना है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अंदर इतनी चीजें भर ली हैं, हम इतने सालों से उस तरीके से जीवन जी रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हाउ टू डू इट। बट एक बार हम करके तो देखें, हम ट्राई तो करें, वो आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर पूरी तरीके से फ्री करेगा। सिमरन जी, बिल्कुल इस डाइट से ठीक हो जाएगा, और उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अलग से भी चैट कर सकते हो, अलग से भी बात कर सकते हो, तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मैंने बताया, अशोकारिष्ट आप ले सकते हो, 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग। होल लेमन प्यूरी, लेमन इज वेरी गुड फॉर यू, लेमन आप ले सकते हैं सिमरन जी। चेतना जी, आपको चाय तो बिल्कुल बंद करनी है सबसे पहले, उसके अलावा डाइट के लिए थोड़ा सा आपको ट्राई करना है। नहीं होगा तो ऑफ कोर्स देयर आर वेज, पर एटलीस्ट हमें ट्राई तो करके देखना है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि हम डाइट बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुबह का नाश्ता हमारा जा रहा है, बाकी तो हम दिन भर खा रहे हैं, बस हमने खाने की स्टाइल को बदल दिया है, खाने में जो ले रहे हैं उस चीज को हमने बदल दिया है। अभी बटर मिल्क एट लंच, दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं। जो छाछ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैंने दूध और दूध के प्रोडक्ट्स तो मना कर दिए, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में आता है पनीर, दूध, दही, पर छाछ एक ऐसी चीज है जो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें अच्छी खासी प्रोसेसेस हो चुकी होती है।
प्रोबायोटिक, वो काफी अच्छा आपके डाइजेशन के लिए रहता है। खाने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस में लाइए। वेरी गुड फॉर पीपल्स हु आर हैविंग किसी भी तरह की एनोरेक्टल प्रॉब्लम, जैसे कि पाइल्स या फिर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम। बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जिनको गैशियस डिस्टेंशन है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना नहीं पचता, खाने डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनको अपने खाने में, लंच में बटर मिल्क को फॉलो करना ही है। खाने का मैंने बताया, जो डिनर है आपको 1 ग्रेन एंड 1 ग्रीन वेजिटेबल लेना है, चाहे वो रोटी और सब्जी हो, चाहे वो दाल और सब्जी हो, चाहे वो चावल और सब्जी हो। अभी हम सब्जियों को अपनी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बना रहे हैं, उसके बारे में भी हम आगे के सेशंस में समझेंगे कि व्हाई दिस इज नीडेड, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो सब्जियों में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को 4 गुना कर देती है। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट रोल उसका देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पैरामीटर्स लें आज। अगर आपकी कोई वेट है आपका, तो आप वो चेक करें, आपका शुगर चेक करें। डायबिटिक पेशेंट्स अगर ये डाइट सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं, सो दे कैन देयर एंड नाउ अपनी जो दवाई है, मेडिसिन जो है, उसको आपको अभी से ही मॉनिटर करना पड़ेगा। आप अगर मॉर्निंग की जो मेडिसिन है वो आपको बंद करनी होगी, आप पहले दिन से बंद कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको थोड़ा विद टाइम दे कैन डू दैट। बाकी अगर आपको कोई और समस्या है तो आप आज से मॉनिटर करिए। आप अगर वेट को मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर मॉनिटर करिए। स्किन में आपकी ग्लो आएगा, वेट आपका मैनेज होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होंगी। तो आप आज समझिए कि आपको किस चीज के ऊपर वर्क करना है एंड देन स्टार्ट अकॉर्डिंगली। So this was it friends, this was all about the today's presentation. अगर आप लोगों को कोई डाउट है आज के प्रेजेंटेशन में, कोई क्वेरी है, या फिर आप अपनी कोई प्रॉब्लम है जो शेयर करना चाहते हैं, सो आप कर सकते हैं मुझसे, आप मुझे बता सकते हैं। We are ready to take questions. If anyone wants to ask any question, please put it on the chat box. Chat में आप अपना question लिख सकते हैं कोई भी आज के टॉपिक से रिलेटेड। ललित is asking भट्ट about जी, the आपको cough. कोल्ड एंड कफ है, आप बात करना चाहते हैं क्या मुझसे स्क्रीन पे? सिमरन जी, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम रहता है, का मतलब है ये डाइट आपके लिए बहुत ही वंडरफुल साबित हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन आपका बढ़ाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप वो लोग अपने आप आपको असर दिखेगा। प्लस मैंने जो आपको चीजें बताई उसमें मैंने आपको गुड़ को सम्मिलित करने के लिए बोला है, शक्कर की जगह, राइट। गुड़ अपने आप में आपके जो बॉडी में आयरन लेवल्स है उसको भी ठीक करता है। और आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिएगा ये फॉलो करने के बाद, डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये डाइट फॉलो करिए। कफ एंड कोल्ड अगर आपको है तो वो तो ये सीजन की वजह से है डेफिनेटली, पर उसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, शाम को डिनर के साथ जस्ट आप सम्मिलित कर सकते हो कोई सूप वगैरह आप लीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आप घर पे डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस कर सकते हो जिसको बोलते हैं वमन क्रिया, जिसके बारे में मैं सेकेंड डे विस्तार से आपको समझाऊंगी, वो आप कर सकते हो। खाने पीने में संजीवनी पेय जो मैंने आपको बताया वो आप शुरू करिए लेना। किसी भी तरह का कफ है उससे पूरी तरीके से रिलीफ होगा। जो पानी में अदरक, लौंग, काली मिर्च पीस के डालना है, उबालना है, उसमें गुड़ डालिए, मीठा करना है तो शहद डाल सकते हो आप अलग से, नहीं तो गुड़ ही रहने दीजिए, दैट इज फाइन। और 2-3 बूंद नींबू के डाल सकते हैं, तो आपको उसमें बहुत रिलीफ मिल जाएगा आपके कफ एंड कोल्ड में। इसके अलावा अगर आपको इससे कुछ लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो सोंठ आपको मिलेगी, मुलेठी, मुलेठी आप मुंह में रख सकते हो, दैट विल बी वेरी गुड। की तासीर काफी अच्छी होती है, इस चीज में हेल्पफुल होती है। स्किन प्रॉब्लम्स, निशा मिश्रा जी आपको स्किन प्रॉब्लम है, क्या मैं जान सकती हूँ किस तरह की स्किन प्रॉब्लम है? मैम देयर इज वन मोर क्वेश्चन। प्रमोद जी बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ को 2 साल से बीपी की प्रॉब्लम
के लिए भी आपसे वो गाइडेंस मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीपी की प्रॉब्लम के लिए आप नोट कर सकते हो, सुबह जो मैंने आपको जूसेस बताए हैं, उसमें आप चुकंदर ऐड कर सकते हो। चुकंदर प्लस गाजर, इन दोनों का आप बना के लीजिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। इनफैक्ट चुकंदर का सूप भी बहुत हेल्पफुल रहता है। इसकी और रेसिपीज मैं आगे आपको बता दूंगी, पर चुकंदर आपके लिए बहुत अच्छा है। जो मैंने आपको मतलब बीट रूट बोलते हैं उसको, वो आप मॉर्निंग में जो भी आप जूसेस पी रहे हो उसमें आप सम्मिलित करिए। गाजर आप सम्मिलित जरूर करिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगेगा। इनफैक्ट आपके वेट का भी बहुत गहरा संबंध होता है ब्लड प्रेशर से। तो अभी तो आप जूसेस को इंक्लूड करिए और अपने ब्लड प्रेशर में चेंज देखिए। ऑफ कोर्स थायराइड में ये डाइट बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है तो ये 100% आपके ऊपर काम करने वाली है। क्योंकि आपको थायराइड जो हुआ है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो है अंदर इंटरकनेक्टेड है। जो वेट है वो इंटरकनेक्टेड है विद द थायराइड, और थायराइड की वजह से मूड स्विंग्स आते हैं, टेंशन्स, जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसमें चेंजेस लाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये डाइट फॉलो करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी थायराइड में। और इनफैक्ट अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आपको साथ में है तो मैंने आपको बता दिया, आप अशोकारिष्ट ले सकते हो 20 ml मॉर्निंग 20 ml इवनिंग। वो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा आसपास में। निशा मिश्रा जी, आपको खुजली रहती है, कौन से पार्ट में? फेस पे रहता है, बैक में रहता है? खुजली जो है वो कफ प्रवृत्ति की वजह से होती है, मतलब अगर कफ बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से होती है। अगेन उसमें मैं वमन की प्रक्रिया बताने वाली हूँ डिटॉक्सिफिकेशन में, जो कि बहुत हेल्पफुल है शरीर के कफ को बाहर निकालने में, प्लस हमारी किसी भी तरह की खुजली वगैरह की प्रॉब्लम को हटाने में, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स को खत्म करने में। वो सेशन आप जरूर अटेंड करिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको फॉर नाउ स्किन प्रॉब्लम है, आप ये डाइट फॉलो करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये डाइट है, आपको खुद ही आपकी स्किन में चेंजेस नजर आएंगे। एनी अदर प्रॉब्लम्स, एनी अदर क्वेरीज यू कैन आस्क प्लीज, आप चैट में डाल सकते हैं। अगर कोई कुछ शेयरिंग करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। ओके एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट सेशन था। अगर आप इसके साथ अग्री करते हो और आप बोलते हो कि हाँ हमें डिटॉक्स करना है, ये 10 डेज हमें सब साथ मिलके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से खत्म करना है, इस डाइट को प्रॉपर फॉलो करना है, तो प्लीज पुट यस इन द चैट बॉक्स एंड वी विल बी फिनिशिंग इट ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, ताकि हम कल फिर से आए कुछ नया इंफॉर्मेशन आपके लेके, और ताकि हम समझ सके कि हमें अपना खुद का डॉक्टर कैसे बनना है, हाउ वी कैन हील आवरसेल्व्स, और हम कैसे चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ओके ग्रेट अदिति, भागीरथ जी दैट्स ग्रेट, चेतना जी, अपूर्वा जी, थैंक यू सो मच, और हम सब एवरीवन। सो ग्रेट, आज के लिए हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं, आपकी कुछ शेयरिंग है, तो आप निकाल के रखिए। हम फिर नेक्स्ट डे कल हम फिर इसी टाइम पे मिलेंगे एंड देन वी कैन डिस्कस मोर अबाउट आवरसेल्व्स। और आप मुझसे बात भी कर सकते हो लास्ट में अगर आपको कोई डाउट और क्वेरीज हो। So thank you everyone. Thank you. We will be Thank you finishing so this much, session. ma'am. Okay, bye bye everyone.